Good morning, children. Today we are going to take up the revision of economics with first chapter, development. Chapter first, development. Development is broadly categorized into two parts, national development and individual development. The concept of development keeps on varying from person to person. Now when we talk about the development refers to the growth, aspiration or desire, what we would like to do and how we would like to do. Aspiration or desire means what? It is related to our wishes, what we wanted to do and how we wanted to do. Development refers to higher thinking skill and how do we work towards achieving these goals. Development is a complex process and involves thinking skill. All these contents we shall be discussing today, like the important goals of development. Important goal of development is more income, education, health, equal treatment, freedom, security, respect. Or else you can say development is the progress or improvement in lifestyle of the people. Development, as I stated, it is an continuous process. It never ends up. It keeps on moving with time and passage. Suppose कर लो कि if you are coming after 5 years to your institution, you will find a lots of changes over here. Changes in the field of, in the area of teaching technology, teaching methodology, teaching methods, they will change. Development also emphasizes over earning. Earning is associated with the development of an infrastructure in all the areas. Then education contributes in the area of an development as it makes the people aware. For development, we also need to have an better health. It is always said that one healthy body has a healthy mind. Equal treatment. Apart from income, what we need? One important factor is that equal treatment. As you know, our society has been divided into various castes, various religions, various customs, various traditions, etc. So nowadays, people from all walk of life, they want an equal treatment, equal respect. What may not be liked by me or what may not be liked by you, we should ensure that the same will not be liked by the others also. दूसरों को भी वो पसंद नहीं आएगा जो हमें नहीं पसंद आता. Then freedom. Freedom is another important concept. We want to live free. We don't want the interference of any person in our life. We feel free to take our own decisions. Next is the security. Security of what? Security of job, security of life, security of goods and services we own, security of house. Then the respect. We need to give respect to gain respect. In other words, you can say respect is not earned, respect is gained. ठीक है? So development, as I already said, it is the progress or improvement in the lifestyle of the people. Now development varies from person to person. इसके conflict goals हैं. जैसे कि यहाँ पर हमने कुछ लोगों को categorize किया हुआ है, like landless laborer, prosperous farmer from Punjab, farmer who depends only on rain for growing crops, a rural woman from a land owning family,
urban employed youth, a boy from urban rich family, a girl from rich urban family, and Adivasi from Narmada Valley. Let's discuss one by one. Landless rural labor means he is having no land. To earn his living, he wants to have an job on daily wages, where he should be paid the wages in time regularly every day. Prosperous farmer from Punjab, he aims that government should announce minimum support price of his crop being cultivated to boost up the production. Better transportation facilities to be developed from his village to nearby city or a town where he can take up his grains for selling. Third one is the farmer who depends only on rain for growing crops. वो किसान जो सिर्फ बारिश पर, रेन के ऊपर निर्भर अपनी फसलों को पैदा करने के लिए, वो क्या चाहेगा? वो ये चाहेगा कि उसके इलाके में नहरें बनाई जाएं, इरिगेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएं, गवर्नमेंट कोऑपरेटिव बैंक्स के थ्रू उसे लोन प्रोवाइड करे, फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करे, ताकि वो इरिगेशन फैसिलिटीज़ को डेवलप कर सके. ए रूरल वुमेन फ्रॉम ए लैंड ओन फैमिली, एक महिला जो कि ऐसे फैमिली से आती है जिसके पास ज़मीन है, तो वो क्या चाहेगी? वो ये चाहेगी कि she should get and better opportunities of education, she should get and better opportunities of doing work in an urban area. Urban unemployed youth, एक लड़का जो शहरों में रहता है, what he thinks about the development, he thinks that with development he will find a job. Suppose a new industry comes up in his area, or new school is being set up in his area, so on the basis of his qualification he will find a suitable job for himself and will manage to fulfill the needs of his family. A boy from a rich urban family, एक लड़का जो बहुत अमीर घर से आता है, शहर में रहता है, वो डेवलपमेंट के बारे में क्या सोचता है? he is having all sorts of facilities at home, so what he thinks that he should be going for better education abroad, he should find a better employment abroad or in India. A girl from rich urban family wishes to have more freedom as it is being given to her brother. उसके भाई को जो आज़ादी मिली हुई है वैसे ही आज़ादी उस लड़की को भी मिले, और उसे भी बाहर काम करने की परमिशन मिले. अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए ज़रूरत हो तो उसे विदेश जाने की या एब्रॉड जाने की या फॉरेन कंट्रीज़ में जाने की उसे परमिशन फैमिली के बिहाफ पर मिलनी चाहिए. एंड आदिवासी फ्रॉम नर्मदा वैली, नर्मदा वैली का एक आदिवासी है, वो क्या सोचता है डेवलपमेंट को लेकर के? उस आदिवासी को जो नर्मदा वैली में रहता है उसको ये मतलब नहीं है कि कितना रेलवे ने डेवलप किया, कितनी इंडस्ट्रीज लगी हैं. उसे इससे मतलब है कि इंस्टेड ऑफ मेकिंग ए डैम देयर शुड बी ए चेक डैम्स बनने चाहिए, ताकि बाढ़ के पानी को नियंत्रित किया जा सके, कंट्रोल किया जा सके. और यदि उसे उसकी ज़मीन से जहाँ पर वो रह रहा है वहाँ से बाहर भी निकाला जाता है, तो उसे ऐसी जगह पर लैंड प्रोवाइड की जानी चाहिए गवर्नमेंट के द्वारा, जहाँ पर वो अपने कल्चर को, अपनी डिग्निटी को, अपनी इंटीग्रिटी को मेंटेन करके रख सके और उसमें किसी का और कोई इंटरफेरेंस ना हो. तो हमने यहाँ पर देखा कि कई प्रकार के लोग हैं, अलग अलग प्रकार के लोग हैं, और उनके डेवलपमेंट गोल्स एक जैसे नहीं हैं. इनकम के साथ साथ, इनकम तो इम्पॉर्टेंट है ही है, लेकिन उसके साथ साथ और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो इम्पॉर्टेंट होती हैं डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से. वो क्या हैं? पहले
तो एक व्यक्ति रेगुलर वर्क चाहता है ताकि वो अधिक से अधिक इनकम अर्न कर सके, जिससे कि वो अपनी बेसिक नीड्स को, बेसिक फैसिलिटीज़ को फुलफिल कर सके, अपने बच्चों को बेटर एजुकेशन प्रोवाइड करा सके, अपने लिए एक अच्छा घर बनवा सके, ठीक है, अपनी फैमिली को बेटर हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड करवा सके। अदर देन इनकम, इनकम के साथ साथ हमारी और भी कुछ ज़रूरतें होती हैं। पैसे से ही हम सब कुछ नहीं खरीद सकते। वी कैन नॉट बाई एवरीथिंग विद द हेल्प ऑफ मनी। तो उसके लिए अपार्ट फ्रॉम इनकम व्हाट आर द अदर गोल्स? इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, सिक्योरिटी एंड रिस्पेक्ट, ये हमारे अदर गोल्स हैं। डिजायर ऑफ द पीपल, डिजायर मीन्स विश, विलिंगनेस। हम चाहते तो हैं कि हमारे पास एक हेलीकॉप्टर हो, लेकिन क्या ये पॉसिबल है? जो हमारी अर्निंग है उससे क्या हम हेलीकॉप्टर खरीद सकते हैं? नहीं खरीद सकते हैं। तो यहाँ डिजायर का मतलब हो गया कि विलिंगनेस टू स्पेंड। यदि हमारी जेब में पैसा है, हमारे पॉकेट में पैसा है और यदि हम उसको खर्च करने के लिए तैयार हैं, तो जो हमारे डिजायर्स हैं, जो हमारी इच्छाएं हैं, वो पूरी की जा सकती हैं। देन मनी जो है डेवलपमेंट में एक मटेरियल थिंग है। पैसे से हम चीज़ों को तो खरीद सकते हैं, पैसे से हम कमोडिटीज खरीद सकते हैं, पैसों से हम अपने लिए बहुत सारी सुख सुविधाएं अरेंज कर सकते हैं, घर बनवा सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज अरेंज कर सकते हैं, नए नए कपड़े, अच्छे अच्छे कपड़े पहन सकते हैं, अच्छा खाना खा सकते हैं, रेस्टोरेंट में जाकर खाना खा सकते हैं। लेकिन सिर्फ पैसे से ये सारी सुविधाएं लेने के बाद हमारी ज़रूरतें पूरी नहीं होती। उसके लिए हमें कुछ नॉन मटेरियल गुड्स की भी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, नॉन मटेरियल गुड्स में क्या आता है? नॉन मटेरियल गुड्स में आते हैं फ्रेंड इन लाइफ। हमारी लाइफ में व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ए फ्रेंड, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ए रिलेटिव्स, इट कैन नॉट बी इग्नोर्ड। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ आवर पेरेंट्स, वी कैन नॉट इग्नोर दैट, सो इट बेयर्स ए मोर इम्पोर्टेंट। ठीक है, देन थिंग्स एक्सेप्टेड बिफोर कंसिडरिंग जॉब इन ए फार ऑफ योर हाउस और सिटी। सपोज कर लो कि आपको आपके शहर से, अकबरपुर से बाहर कहीं जॉब मिलती है, बेंगलोर में जॉब मिलती है, तो बेंगलोर में जॉब करने के लिए आप क्या क्या सोचोगे? यहाँ पर आप सपोज कर लो कि आपको यहाँ 25,000 रुपये मिल रहे हैं और बेंगलोर में आपको 40,000 रुपये मिल रहे हैं, तो क्या आप बेंगलोर की जॉब एक्सेप्ट कर लोगे? एक्सेप्ट करने से पहले हम बहुत सी चीज़ों पर विचार करते हैं। नंबर 1 कि बेंगलोर से रोज तो अकबरपुर आना संभव नहीं है। ठीक है, बेंगलोर में लिविंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। हम एक नए शहर में जा रहे हैं, क्या वहाँ पर हमें सिक्योरिटी मिलेगी? क्या हम इनसिक्योर मतलब सिक्योर फील होंगे, या इनसिक्योरिटी परसिस्ट करेगी या एग्जिस्ट करेगी? या फिर ओवरऑल डिफरेंस कितना है? यहाँ आप अपने घर में रह रहे हो, वहाँ आप बाहर किराए का मकान लेकर के रहोगे, उसका जो आपको रेंट देना पड़ेगा, तो ओवरऑल 25,000 और 40,000 में कोई बहुत अधिक डिफरेंस आपको नहीं हो जाएगा। तीसरा, डेवलपमेंट के समय इट हैज बीन एब्जॉर्ब्ड एंड सीन दैट पीपल हैव मिक्स्ड गोल्स। मिक्स्ड गोल किस में होते हैं? एजुकेशन में होते हैं, हेल्थ में होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन में होते हैं। You recall the chapter that you studied in economics people as resource, the story of Sakal and Vilas in class 9th. Get clear? Education से हम अपने आप को अपडेट कर सकते हैं, अपग्रेड कर सकते हैं, अवेयर कर सकते हैं। Health merely important. Without health, you neither one can work nor one can study. ट्रांसपोर्टेशन, हमें एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए बेटर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो हम ये भी चाहते हैं कि डेवलपमेंट हो तो एजुकेशन फैसिलिटीज़ भी इम्प्रूव हों, हॉस्पिटल्स खुलें और अच्छे रोड्स बने, बेटर रोड्स बने। ठीक है, देन एक महिला, ए वुमेन engaged in a paid work for work, her dignity in the house and society increases. यदि वो कहीं काम करती है
तो उसकी डिग्निटी, उसका आत्मसम्मान दोनों बढ़ता है। सोसाइटी की नज़र में तो बढ़ता ही बढ़ता है और समाज की नज़र में तो बढ़ता ही बढ़ता है। घर वाले भी उसको एक सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, उसको सम्मान देते हैं, बिकॉज शी इज़ कॉन्ट्रीब्यूटिंग फाइनेंशियली, मटीरियल वे में वो कंट्रीब्यूट कर रही है फैमिली को अपलिफ्ट करने के लिए। वैसे भी ये कहा जाता है कि यदि हम एक महिला को शिक्षित करते हैं तो 2 परिवारों को शिक्षित करते हैं, क्योंकि जो महिला होती है वो किसी की बेटी भी होती है, किसी की माँ भी होती है, ठीक है, किसी की बहू भी होती है, तो वो दोनों फैमिलीज के अपलिफ्टमेंट करने के लिए काम करती है। देन related to the topic we have discussed today, so that would be better you complete this, and in case of any problem you can discuss it with me. Thank you. Have a nice day.